Hello, my dear children. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Science Class 8. This is a science book and the name of the book is Science Horizen, Inspiring Tomorrow's Innovators. Today we are going to start with a new chapter. This is chapter number 10 of your book and the name of the chapter is Sound. So in this chapter we are going to learn how is sound produced, medium of propagation of sound, and sound produced by human beings. So the sensation felt by our ears is called sound. So जो sensation हमारे ears में feel होती है उसे हम sound कहते हैं. The sound is a form of energy. Sound is that form of energy which makes us hear. तो sound क्या करता है? एक energy का एक form है और हमें ये सुनने में help करता है. We hear many sounds around us in everyday life. So अगर हम रोज की बात करें तो हम हजारों तरीके के sounds सुनते हैं. At home we hear the sound of our parents talking to us. So parents की आवाज हमें सुनाई देती है जब हम घर पे रहते हैं, वो हमसे जब बात करते हैं. We also hear the sound of telephone bell, radio, television. So इनके भी sound हम सुन सकते हैं. Stereo system, mixer grinder and washing machine. At school, we hear the sound of a teacher, classmate, and school bell. We hear the sound of scooter, motorcycle, car, bus, and truck on the road. So ये सारे sounds जो यहाँ mention है, ये सारे हम day-to-day life में सुनते हैं. And the sound of a flying aeroplane is heard from the sky. At a music concert, we hear the sound produced by the various musical instruments like sitar, veena, violin, guitar, tanpura, piano, harmonium, flute, shehnai, tabla and cymbals, etc. In the garden, we hear the sound of chirping of birds and rustling of the leaves of the tree in breeze. In rainy season, we hear the sound of rain and clouds. In a factory, we hear the sound of different types of made by the various big and small machines. And at night, when most of the sound stops, we can hear the faint of sounds of the tickling of the clock and the buzzing of the mouse. So यहाँ पे children different sounds लिखे हैं जो हम अपने पूरे दिन में सुनते हैं. Morning to night जो भी sounds हम सुनते हैं वो सारे यहाँ mention किए गए हैं. Each sound is special to the object which produces it. So हर एक sound बहुत ज़्यादा special है जो भी object इसे produce कर रहा है उसके लिए. For example, the ticking of the clock, the clinking of the electric switches and the whirl of the ceiling fan are the characteristic sound produced by the clock, an electric switch and the ceiling fan respectively. So यहाँ पे clock का sound या फिर switch का sound या फिर ceiling fan के sound को describe किया गया है कि इनके sound जो है इनसे ही specified है. And we rarely forget a sound having heard it once and quickly recognize the sound when we hear it again. So अगर हमने किसी sound को एक बार सुन लिया और दोबारा जब हम उसे सुनते हैं तो हम उसे फटाफट recognize कर लेते हैं, पहचान लेते हैं. We can even recognize a person from the sound of his voice. हम किसी भी person को उसके voice से पहचान लेते हैं without seeing his face, उसके face को बिना देखे. For example, we can usually tell from the voice which singer is singing. वॉइस को सुनते ही हम बता देते हैं कौन से सिंगर का ये सॉन्ग है. On radio, even though we do not see the face of the singer, thus every sound has a unique quality which distinguishes it from other sounds. So हर sound की अपनी एक quality है जो उसे दूसरे sound से अलग करती है. Sound plays an important role in our daily life. Sound हमारी life में एक बहुत ही important role play करता है. It helps us to communicate. हमें दूसरे से बात करने में help करता है. Though all through the hours, when we are awake, we hear more different sounds around us. So, अगर हम पूरे टाइम की बात करें तो जब भी हम जगे रहते हैं हमें अलग-अलग तरीके के साउंड सुनाई देते हैं. The sound of people talking among themselves, playing of radio, running of vehicles, flying of an aeroplane, running of machines, etc. Some of the different sounds we hear. ये कुछ sounds है जो हम सुनते हैं. ये you can see the pictures. Sound is defined as a form of energy that travels through a medium in the form of vibration. तो sound क्या है? एक energy का form है जो
कुछ वाइब्रेशंस की वजह से हम तक पहुंचता है. When these vibrations reach a person's ear, he is able to hear the sound. और ये जब वाइब्रेशंस किसी की कानों तक जाती हैं तब वो साउंड को सुन पाते हैं. Both living and non-living things produce sound, and however each sound is special to the object producing it. So हर कोई एक साउंड को प्रोड्यूस करता है और वो साउंड एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक जो है उसको स्पेसिफाई करता है. Example is chirping of bird, ticking of the clock, ringing of the bell, rippling of the water, etc. While some sounds are pleasing, some are unpleasing. कुछ अच्छे लगते हैं और कुछ बुरे. Sound can be heard from a distance and some cannot be heard from a distance. So कुछ को हम थोड़ी दूर से सुन सकते हैं but कुछ को हम दूर से नहीं सुन पाते. How is sound produced? कैसे ये produce होता है? A sound can be produced in the following ways: by beating a drum or table or hitting a hammer. So किसी चीज को beat करेंगे तो sound निकलता है. By rubbing, playing a violin or brushing a broom across the floor. So किसी चीज को rub करने से sound निकलता है. By blowing, playing a flute, a trumpet or whistling of a pressure cooker. By plucking, playing the guitar or sitar when an arrow is swung. So ये सारे processes जिससे sound create होता है. The sound is produced when something moves. जब कोई चीज move करती है तो sound produce होता है. This movement that produces sound in rapid to and fro motion are called vibration. So ये sound का produce होता है जब to and fro motion होता है और इसे ही vibration कहते हैं. Thus sound is a form of vibration. The vibrating body disturbs air and produces sound waves. ये जो vibrating body है क्या करती है? Air को disturb करती है और sound waves को produce करती है. When the object stops vibrating, we do not hear the sound. अगर object जो है vibrate नहीं करता तो हमें sound सुनाई नहीं देगा. Let us understand it with the help of a few activities. Characteristics of vibration. The vibration has three important characteristics. They are frequency, amplitude, and time period. They determine the characteristics of a sound produced. The first is frequency. It is defined as a number of vibrations made by a vibrating body in 1 second. So ये क्या है? Number of vibrations जो एक body produce कर रही है 1 second में. Its unit is hertz. Example, if a body makes 6,000 vibrations in 1 second, its frequency is 600 hertz. So अगर एक body जो 600 vibrations 1 second में बना रही है तो कहा जाएगा कि इसकी frequency है 600 hertz है. Next is amplitude. It is defined as a maximum extent to which a vibrating body can vibrate. So ये एक extent है, maximum extent है जब तक which जिससे जो बॉडी है वाइब्रेटिंग बॉडी ये वाइब्रेट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर, इफ ए बी इज अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, अगर यहाँ पे ये जो ए बी है ये एक स्ट्रिंग है, देन जी एंड एच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. सो जी एच जो है ये एम्पलीट्यूड है उस वाइब्रेशन का. Now let's learn about the time period. It is defined as the time taken by the vibrating body for one complete vibration. So ये क्या है? वो टाइम है जो कोई वाइब्रेटिंग मीन्स चलती हुई बॉडी ने एक पूरा टाइम, एक पूरा ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के लिए लिया, एक पूरे वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए लिया है. In many cases, the sound producing objects have rapid vibrations that are difficult to observe. So बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं एंड दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, जिसे डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करना. However, slower vibrations can be produced in the simpler pendulum. So अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो यहाँ पे स्लो वाइब्रेशंस होते हैं. It consists of the weight hanging by a thread. इसमें जो वेट है वो थ्रेड से हैंग होता है. On giving it a small push, it produces a to and fro movement. So जब हम इस
बॉल को पकड़ के हम इसे मूव करते हैं, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, तो ये एक टू एंड फ्रो मूवमेंट देता है. दैट हैज स्लो वाइब्रेशंस कॉल्ड ऑसिलरेशन, और इन वाइब्रेशंस को, इन मूवमेंट्स को हम ऑसिलरेशन कहते हैं. Characteristics of sound. Sound has three important characteristics, and these are loudness, pitch, and quality. What is loudness? It is a characteristic of a sound that enables us to distinguish a loud sound from low sound. So ये जो है, ये characteristic है जो distinguish करता है, जो differentiate बताता है loud sound और low sound के बीच में. We hear different sounds producing डिफरेंट सेंसेशन. हम क्या सुनते हैं? अलग अलग डिफरेंट साउंड्स जो अलग अलग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं ना ईयर, सच एज द हॉर्न ऑफ द व्हीकल, जैसे कि व्हीकल का हॉर्न, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, द साउंड ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बार्किंग ऑफ द डॉग एटसेट्रा. सो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है. वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ आवर फ्रेंड और रिलेटिव. हम अपने फ्रेंड या फिर रिलेटिव की भी वॉइस को इसमें इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. टू साउंड्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट लाउडनेस. सो दो साउंड जो है एक दूसरे से काफी अलग होते हैं क्योंकि इनकी जो लाउडनेस है वो अलग होती है. द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. जो साउंड की लाउडनेस है वो 3 फैक्टर्स है, उस पर डिपेंड करती है. एम्पलीट्यूड, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड. What is amplitude? So the greater the amplitude, the louder the sound is. जितना ज़्यादा amplitude होगा उतना ही ज़्यादा उसका sound होगा. If you plug the string of a guitar or a sitar gently, अगर आपने गिटार या फिर सितार के स्ट्रिंग को हल्का सा प्लग किया है, a soft sound is produced, एक soft sound आएगा. But if you plug the string harder, अगर आपने उस स्ट्रिंग को तेजी से प्लग किया है तो it is displaced from मोर फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पोजिशन. अपनी पोजिशन से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है. सिमिलरली इफ यू स्ट्राइक द ड्रम जेंटली, अ फेंट साउंड विल बी heard, but if you strike it hard, a loud sound is heard. So अगर इसी तरीके से हम ड्रम को जो है हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा स्ट्राइक करेंगे तो एक हल्की आवाज़ आएगी, लेकिन अगर उसे तेज से स्ट्राइक किया तो तेज आवाज़ आएगी. Loudness of sound is directly proportional to the square of the amplitude of the vibration produced by the sound. So ये जो loudness है sound का वो proportional है जो amplitude है vibration का उससे. And if amplitude doubles, अगर amplitude क्या है double हो जाता है, the loudness becomes 4 times. तो loudness क्या हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी. See the activity 4. Here you can see wave of faint sound and wave of loud sound. So आप देख सकते हो हल्के साउंड में क्या है? हल्की वाइब्रेशन है, बट जब लाउड साउंड है तो लाउड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड. Here you can see smaller amplitude produces a faint sound. So हल्का सा एम्पलीट्यूड हल्का सा हमने स्ट्राइक किया ड्रम पे तो हल्की साउंड आई, एंड लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसेस अ लार्ज साउंड. और तेज से हमने जो ड्रम बीट किया तो तेज आवाज आई. अब आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड इसमें कितना लो है और इसमें कितना हाई जा रहा है. नाउ द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. द मोर द एरिया द लाउडर इज द साउंड. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा साउंड होगा. बिग ड्रम प्रोड्यूस लाउडर साउंड देन द स्मॉल ड्रम. अगर हम बिग ड्रम की बात करें तो वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्मॉलर के मुकाबले. डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स ऑफ साउंड. सो लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में क्या डिस्टेंस है वो भी डिपेंड करता है, वो भी एक फैक्टर है. So the nearer is the listener of the source of sound, the louder he can hear the sound. So जितना ज़्यादा पास listener होगा उतना ज़्यादा उसे sound सुनाई देगा. Next is pitch. It is a characteristic of sound that enables us to distinguish a shrill sound from the grave. So ये एक sound है जो help करता है हमें sound में shrill sound में distinguish करने में, means differentiate करने में. From the grave hoarse sound, even though the two have the same loudness. भले ही उन दोनों की सेम लाउडनेस है लेकिन हम इसकी वजह से ही पिच की वजह से दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं.
The pitch of the sound depends on the frequency, that is frequency is of the vibrating body. So जो sound का जो pitch है वो frequency पे depend करता है, और ये frequency कैसे हो सकती है, किसी भी vibrating body की. A sound of high frequency has a high pitch. So ऐसी चीज जिसकी high frequency है उसकी जो pitch भी काफी high होगी, while the sound of low frequency has a low pitch. जिसकी frequency low होगी उसकी pitch भी लो होगी. The higher the pitch, the shriller is the sound. जितनी ज्यादा हाई पिच रहेगी उतनी ही shriller sound होगा. And if the pitch is low, the sound is flat. जो sound है वो flat होगा, ये hoarse होगा. Example, the voice of a girl is shriller than that of a boy. So girls की voice को अगर हम boys की voice से compare करें तो girls की जो आवाज है वो काफी ज्यादा लो होती है पिच में compared to boys, because it is of high pitch. The voice of a child is shriller than that of an adult. जो child की voice है वो adult की voice से अगर हम compare करें तो वो काफी low होती है. Here you can see the low frequency, low pitch and grave or flat sound. So आप देखो कि कैसे जो sound है वो कैसे यहाँ पे the amplitude and the wave that is formed here. Now here you can see in the another example, a pitch of low frequency sound is low. So low frequency वाली चीजों की जो sound है वो low होगा. You can see the waveforms. The pitch of high frequency sound is high. और जो pitch होता है high frequency sound का उसका pitch जो है high होता है. The wings of bees and mosquitoes vibrate with a high frequency. So ये जो bees होते हैं या mosquitoes होते हैं, इनके जो wings है वो high frequency से क्या करते हैं, vibrate करते हैं, thereby producing a shrill high pitch sound, जो कि high pitch sound produce करते हैं. As already said, the voice of women and children is shriller as compared to the voice of men. So men से अगर compare करें तो voice जो women की होती है या children की होती है वो कम होती है, उनकी पिच कम होती है men के मुकाबले. This is because children and women have short vocal cords. ये इसलिए होता है कि जो ये women होते हैं या जो children होते हैं, इनके जो vocal cords होते हैं वो short होते हैं, and that vibrate with high frequency producing high pitched shriller sound. और ये vibrate करते हैं high frequency के साथ high pitched shrill sound को produce करने के लिए. On the other hand, men have large vocal cords. जो men हैं उनकी जो vocal cords है वो large होते हैं, vibrating with low frequency, जो low frequency से ही vibrate करते हैं. Therefore produce low pitched grave sound, जो low pitched grave sound produce करते हैं. Now what is the quality? It is defined as a characteristic of sound by virtue of which we can differentiate between the two sounds of same pitch. So ये क्या है, ये characteristic है किसी भी sound का जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो साउंड्स और दो सेम पिचेस के बीच में. एंड लाउडनेस प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट सोर्सेज, और जो लाउडनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों सोर्सेज. एग्जांपल, द साउंड प्रोड्यूस बाय वीणा एंड द साउंड प्रोड्यूस बाय फ्लूट. सो वीणा और साउंड के जो हमारा फ्लूट है, इन दोनों के साउंड में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ दीज. वी कैन रिकॉग्नाइज पीपल इवन ऑन द टेलीफोन बाय देयर वॉइस. हम फोन पे भी लोगों की आवाज से उन्हें पहचान सकते हैं. एज ईच वन हैज अ वॉइस विद अ पर्टिकुलर क्वालिटी, क्योंकि सबकी जो वॉइस है उनकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है. नाउ साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग इज द लार्निक्स. सो लार्निक्स है जो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं ह्यूमन बींग में, और द वॉइस बॉक्स, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. इट इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ द ट्राचिया. सो ट्राचिया के ऊपर ये सिचुएटेड है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप. देयर आर टू लिगामेंट्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लाइनेक्स, और लाइनेक्स से स्ट्रेच होके दो लिगामेंट्स हैं, एंड दीज आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स. इन्हें वोकल कॉर्ड कहा जाता है. हियर यू कैन सी द पिक्चर. These ligaments are stretched in such a way that there is a narrow slit between. So ये जो ligaments है ये ऐसे स्ट्रेच होते हैं कि इनके बीच में एक पतला सा स्लिट होता है, मीन्स जगह होती है between them for the passage of air. एयर को
पास करने के लिए। When the air is forced through the slit by the lungs, so ये जो lungs है हमारे, जब एयर्स को ये फोर्स करते हैं, the vocal cord vibrate, जो vocal cord है वो वाइब्रेट करता है। This leads to the production of voice, और इसकी वजह से जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है। There are muscles attached to the vocal cord that may increase or decrease their pull on the ligament. So बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो अटैच होते हैं इन वोकल कॉर्ड्स में, जो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं लिगामेंट्स के पुल को। अ वॉइस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर टाइटन एंड थिन। सो वॉइस हाई फ्रीक्वेंसी की कब प्रोड्यूस होती है, जब ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये टाइट होते हैं या फिर थिन होते हैं। एंड व्हेन द वोकल कॉर्ड्स बिकम लूज एंड थिक, जब ये वोकल कॉर्ड्स लूज और थिक हो जाते हैं, द वॉइस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस, लो फ्रीक्वेंसी की वॉइस प्रोड्यूस होती है। द वोकल कॉर्ड ऑफ अ मैन इज अबाउट 20 mm long, that is 5 mm longer than that of a woman. So here you can see the vocal cord is in front of you. Children have short vocal cords, that's why they have a voice of higher frequency. So ये जो चिल्ड्रन है इनकी जो वोकल कॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से इनकी जो वॉइस है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, एंड दैट इज द श्रिल्ड वॉइस। ऑडिबल वॉइस, वी हैव लर्न दैट ऑल द वाइब्रेशंस कॉज साउंड। सो हमने पढ़ा है कि जितने भी वाइब्रेशंस है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, बट ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। लेकिन ह्यूमन ईयर जो है वो हर तरीके की फ्रीक्वेंसी की आवाज को नहीं सुन सकते। We cannot hear the sound of frequencies in the range from 20 Hz to 20,000 Hz. हम जो है सिर्फ 20 Hz से 20,000 Hz तक के साउंड को सुन सकते हैं। We cannot hear sounds of frequency below 20 Hz or above 20,000 Hz. ना तो हम 20 Hz से नीचे वाले साउंड को सुन सकते हैं, ना 20,000 Hz के ऊपर वाले साउंड को सुन सकते हैं। The range of frequencies from 20 Hz to 20,000 Hz is called audible range, और इस रेंज को audible range कहा जाता है for a normal human ear। normal human ear की बात करें तो ultrasonic and infrasonics क्या होते हैं ये दोनों? Sounds and frequencies higher than 20,000 Hz are called ultrasonic। So 20,000 Hz से अगर ऊपर साउंड है तो उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। एंड सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, monkeys, deer, leopards, etc. can hear ultrasonic sounds। ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। Dogs can hear sound of frequency 50,000 Hz। ये 50,000 Hz तक के साउंड को सुन सकते हैं। Bats can hear sound up to the frequency of 1 lakh Hz। बैट्स जो है 1 लाख हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी तक के साउंड को सुन सकते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। वी कैन नॉट हियर इंफ्रासोनिक एग्जाम्पल, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक मेक्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड में ये जो पेंडुलम है एक वाइब्रेशन को क्रिएट करती है, हम इसे नहीं सुन सकते। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ 0.5 Hz is the infrasonic sound। So ये जो फ्रीक्वेंसी है 0.5 Hz की, ये एक इंफ्रासोनिक साउंड है which we cannot hear, जिसे हम नहीं सुन सकते। Here you can see the internal part of the ear। Now structure and working of a human ear। The ear is the sense organ for hearing। The sound waves reach our ear and we hear sound। सो हमारे जो ईयर्स हैं वो एक सेंस ऑर्गन है जो हियर करने का काम करते हैं, और जो ये वेव्स है ये हमारे ईयर्स तक रीच करते हैं और जब हम उन्हें हियर करते हैं। द 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर आर, हमारे ईयर के 3 पार्ट्स हैं, क्या क्या हैं? आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। सो हमारे ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर। The outer ear consists of pinna, ear canal and eardrum। So ये जो outer ear है उसमें जो है पिना है, outer ear canal है और ear canal है और eardrum है। So ये सारी चीजें जो है हमारे outer ear में हैं। Next is
The middle ear consists of the cavity with 3 interlocked bones. So हमारे जो मिडिल ईयर है वहाँ पे कैविटी है जिसमें 3 इंटरलॉक्ड बोन्स हैं जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. So here you can see this is our middle ear and this is our eardrum जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं. So this is our middle ear which consists of hammer, anvil and stirrup. The inner ear consists of the semicircular organ. जो inner ear है वहाँ पे एक semicircular organ है of hearing called cochlear. ये इसे कहते हैं cochlear. And it is filled with fluid and has many hair cells inside it. ये fluid से भरा हुआ होता है और इसके अंदर बहुत सारे hair cells होते हैं. Auditory nerve is also present in the inner ear. So auditory nerve जो है हमारे inner ear में present होता है जो हमें सुनने में help करते हैं. So children, this is the structure of ear. And now let's learn about the working of human ear. कैसे work करता है? Pinna collects the vibration from the surrounding and sends them to the ear canal. अब पीना क्या करता है? जो भी वाइब्रेशंस है उसे जो है कलेक्ट करता है बाहर से और अंदर ईयर कैनल तक सेंड करता है. The vibrations reach the eardrum present at the end of the ear canal. ये जो वाइब्रेशन है ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं जो ईयर कैनल के पास एंड में होता है. द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एज सून एज द वाइब्रेशन स्ट्राइक्स इट्स. और ये जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करने लग जाता है जैसे इसको कोई भी वाइब्रेशन सुनाई देती है. द 3 बोन्स इन द मिडल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग. और जो तीनों बोन्स हैं बीच में वो भी वाइब्रेट करने लग जाती हैं विद द ईयर ड्रम. दिस 3 बोन्स एम्पलीफाई द वाइब्रेशन रिसीव्ड फ्रॉम द ईयर. और ये जो तीनों बोन हैं जो भी वाइब्रेशन रिसीव होती है उसे एम्पलीफाई करते हैं एंड सेंड देम टू द इनर ईयर. इन्हें ये इनर ईयर में भेजते हैं. द कॉकिया इन द इनर ईयर रिसीव्स द एम्पलीफाइंग वाइब्रेशन. सो इसे जो है कॉकलिया को जो है एम्पलीफाइंग वाइब्रेशन जो है समझ में आते हैं, ये रिसीव करता है उसे एंड कन्वर्ट्स देम इनटू नर्व इम्पल्स, जिसे ये नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है. द टाइनी हेयर एंड सेमी सर्कुलर कैनल गेट स्टिमुलेटेड ड्यू टू दीज वाइब्रेशन. ये जो टाइनी हेयर होते हैं और जो सेमी सर्कुलर कैनल है ये सब स्टिमुलेट हो जाते हैं, मीन्स जाग जाते हैं इस वाइब्रेशन की वजह से. एज अ रिजल्ट द नर्व इम्पल्सेस आर सेंट टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व्स. सो ये क्या करते हैं, नर्व्स जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक भेजते हैं ऑडिटरी नर्व से प्रेजेंट इन द इनर ईयर. द ब्रेन डिकोड्स द नर्व इम्पल्स. ब्रेन क्या करता है, इस नर्व इम्पल्स को डिकोड करता है, इसकी लैंग्वेज को समझता है एंड वी आर एबल टू हियर द साउंड. और इसकी वजह से हम साउंड को इजीली सुन पाते हैं. मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. साउंड जो है वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता. इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. उसे जो है मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस. Let us understand it with the help of a few activities. So let's understand this. The first is speed of sound. The speed of sound is maximum in solids. जो sound की speed है वो solids में सबसे ज़्यादा होती है. Less in liquid and least in gases. You must have noticed that in rainy season the sound of thunder is heard much later than the lightning is seen. आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो हमें जो है बिजली चमकती हुई पहले दिखती है और आवाज उसकी बाद में सुनाई देती है. थंडर की आवाज हमें बाद में सुनाई देती है. द रीजन इज दैट द लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड. ये इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट है वो साउंड से तेज चलती है. इट टेक्स अबाउट नेग्लिजिबल टाइम फॉर द लाइट टू रीच अस. टाइम को हमारे तक पहुंचने के लिए काफी कम टाइम लगता है. एंड वाइल द साउंड टेक्स मच टाइम टू रीच अस. लेकिन जो साउंड है ये काफी टाइम लगा देता है. दिस फैक्ट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. और इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हैं और हम साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं. नाउ व्हाट इज नॉइज एंड म्यूजिक.
Some sounds are pleasant to hear whereas some are not. कुछ साउंड्स ऐसे हैं जिन्हें हम इजीली जो है सुन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें सुनना, बट कुछ नहीं होते हैं. द साउंड ऑफ अ कुकी इज प्लीजेंट. अगर कुकू बर्ड की बात करें तो उसकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो हमें सुनना अच्छा लगता है. while the cawing of the crow is unpleasant. अब क्रो अगर बोलने लगे, कौवा बोलने लगे तो हमें उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी. द साउंड दैट इज प्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड म्यूजिक. वो साउंड जो हमें सुनने में अच्छा लगता है उसे म्यूजिक कहते हैं. सच ए साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस दैट आर रेगुलर एंड पीरियोडिक. सो ऐसे साउंड को हम वाइब्रेशंस से जो है प्रोड्यूस करते हैं जो रेगुलर होते हैं या फिर पीरियोडिक होते हैं. द साउंड दैट इज अनोइंग टू हियर इज कॉल्ड नॉइज. और वो साउंड जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सुनना उसे हम नॉइज कहते हैं. Such a sound is produced by vibrations that are irregular. और ऐसे साउंड को हम वाइब्रेशन कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा irregular होते हैं या फिर नॉन पीरियोडिक होते हैं. The sound heard on plucking the string of a sitar is perceived as pleasant, but if some pebbles are put in the tin and rattle, the sound produced is harsh. So अगर हम सितार को प्ले करें तो हमें वो साउंड बहुत ही अच्छा लगेगा, और लेकिन अगर हमने कुछ पत्थरों को, पेबल्स को जो है एक टिन कैन में डाला और उसे जो है हिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो कैसे आवाज आएगी? ऐसा लगेगा एक रैटल साउंड आ रहा है जो बहुत ज्यादा ही हार्श लगेगा, वो प्लीजेंट नहीं लगेगा. ये यू कैन सी द रेगुलर एंड पीरियोडिक वेव ऑफ म्यूजिकल साउंड्स एंड इरेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक waves from noise. Musical instruments. The musical instruments produce musical sounds, and they are broadly divided into 4 types according to the nature of the vibrating element. They are as follows. So musical instruments को यहाँ पे 4 categories में बांटा गया है. कैसे? According to the nature of vibrating elements. Vibrating elements के nature के according. Now the first is the stringed instrument. वो instrument जिनमें string लगा होता है और स्ट्रिंग को प्लग करते हैं उसे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. द साउंड इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग्स. सो ये जो साउंड है इन इंस्ट्रूमेंट्स में वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? इन इंस्ट्रूमेंट्स के स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके. स्ट्रिंग्स आर प्लग्ड ईदर बाय स्ट्राइकिंग. ये जो स्ट्रिंग है इन्हें या तो स्ट्राइक करके प्लग किया जाता है या फिर बो करके. द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड द टॉट, और इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स को हम टॉट कहते हैं. द पिच ऑफ द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कैन बी चेंज्ड. ये जो पिच है इन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इन्हें हम चेंज कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की लेंथ को ऑल्टर करके. इन केस द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट अ थिन स्ट्रिंग वुड हैव हायर फ्रीक्वेंसी. अगर हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो अगर एक पतला सा स्ट्रिंग है तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है देन अ थिक स्ट्रिंग, एक मोटे स्ट्रिंग के मुकाबले. मेड ऑफ सेम मटीरियल हैविंग द सेम लेंथ. एक ही मटीरियल से भले वो बना हो और एक ही लेंथ का क्यों ना हो. A short string would have a higher frequency than a long string made of same material and having the same thickness. So अगर एक short string की बात करें तो उसके पास वो उसकी जो frequency काफ़ी ज़्यादा होती है long string के मुकाबले, भले ही वो same material का बना हो और same thickness का क्यों ना हो. A string having more taut would produce a sound of high frequency. So ऐसा string जिसमें काफ़ी ज़्यादा taut है, ऐसा string जो है ज़्यादा sound को produce करता है high frequency में. The string instruments can be further classified as follows. So अब हम इन string instruments को आगे classify कर सकते हैं. कैसे? Plugged string instruments, example sitar and guitar. So plugged string instrument है यहाँ पे. Next is struck string instrument जिसे piano कहते हैं. Next is bowed string instrument जिसे हम violin कहते हैं. The stringed instruments are called
तातु वाद्य इन हिंदी। सो इन्हें जो है तातु वाद्य भी हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट इज परकशन और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। So they have a taut skin on the or a membrane. इनके पास एक स्किन होती है जिसे हम जो है हिट करते हैं या मेम्ब्रेन जिसे कह सकते हैं, and that is stretched over the frame, जो एक फ्रेम पे लगा हुआ था। When the membrane is made to vibrate by beating with fingers or sticks, जब इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेट किया जाता है फिंगर्स की मदद से बीट करके या फिर स्टिक से बीट करके, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल तबला, ड्रम, ढोलक, मृदंगम एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड अवनाद्य वाद्य इन हिंदी। इन्हें हम अवनाद्य वाद्य भी कहते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट, they make use of vibrating air columns to produce sound. So ये क्या है, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स होते हैं इसमें जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लूट, बगल्स, ट्रम्पेट एंड सैक्सोफोन एक्सेट्रा। द फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। सो इनकी जो फ्रीक्वेंसी को है हम चेंज कर सकते हैं, इनके जो एयर कॉलम्स बने उनको सीज करके। In these instruments, a short air column produces a shrill note of high frequency. So अब इन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो एयर कॉलम बने हुए होते हैं वो श्रिल नोट को प्रोड्यूस करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे देन लॉन्ग एयर कॉलम से अगर हम इन्हें कंपेयर करें। नेक्स्ट इज रीड इंस्ट्रूमेंट। टू थिन मेटालिक स्ट्राइप्स are pressed together to form a reed. So दो metallic strips हैं जिन्हें यूज किया जाता है, एक साथ प्रेस किया जाता है एक रीड को बनाने के लिए। If air is forced between the stripes, अगर एयर को इन स्ट्राइप्स के बीच में डाला जाए, they vibrate and produce sound. ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। Very often reed instruments also use their एयर कॉलम्स टू वाइब्रेट। ये जो रीड इंस्ट्रूमेंट है ये भी अपने एयर कॉलम को यूज करते हैं वाइब्रेट करने के लिए। एग्जाम्पल नदस्वारम, क्लैरिनेट, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम एक्सेट्रा। सो दीज आर रीड इंस्ट्रूमेंट्स। बोथ द विंड एंड द रीड इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड सुशीर वाद्य। इन दोनों को हम सुशीर वाद्य कहते हैं हिंदी में। सम अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर मंजीरा, जिसे हम चिम्बल्स भी कहते हैं, द घंटम एंड द नूट विच इज मुडपॉट्स। बीटन और स्ट्रक, बीट क्या होता है, स्ट्रक क्या होता है। अदर सच इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड जल तरंग, बेल्स एक्सेट्रा। सो और भी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम यहाँ दिए गए हैं जो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। तो अभी हमने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज टू मच नॉइज इन द सराउंडिंग। सो ये क्या है, जब सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है, दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट एंड डिस्टर्बेंस ऑफ एनी काइंड। जो क्या करता है, डिस्कम्फर्ट को प्रोड्यूस करता है, डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करता है। द वेरियस कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर, जो कॉजेज है नॉइज पोल्यूशन के वो हैं नॉइज फ्रॉम व्हीकल्स, हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। सो ये सारे जो है क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स को जलाना, लाउड म्यूजिक। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। सो जो साउंड की लाउडनेस है उसे हम डेसिबल्स में मेजर कर सकते हैं और जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है डीबी। A sound of another 90 dB and above produced for a long time cause noise pollution. So ये जो साउंड है 90 dB का, ये जो है नॉइज पोल्यूशन को प्रोड्यूस करता है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, क्या क्या इफेक्ट्स हैं। नॉइज पोल्यूशन कॉजेज वेरियस हेल्थ हजार्ड्स। सो ये जो नॉइज पोल्यूशन है इससे काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। हेडेक, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, nervous
tension, sleeplessness, irritation, earache, high blood pressure, deafness, difficulty to converse with each other. So these are the effects of noise pollution. How can we control noise pollution? Automobiles should be fitted with silencers and soft horns. Do not blow horns unnecessarily. So ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं इनमें साइलेंसर्स या फिर लगे होने चाहिए या फिर हॉर्न इनके सॉफ्ट होने चाहिए और अननेसेसरीली हॉर्न हमें नहीं बजाना चाहिए. यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी बैंड. लाउड स्पीकर के यूज को खत्म कर देना चाहिए. द म्यूजिक सिस्टम रेडियो एंड टेलीविजन शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम. सो ये जो म्यूजिक सिस्टम है, रेडियो है या फिर टेलीविजन है, इन्हें लो वॉल्यूम पे ही प्ले करना चाहिए. Avoid bursting crackers as it causes not only noise pollution but also air pollution. So crackers को कम जलाना चाहिए, avoid करना चाहिए क्योंकि ये noise pollution के साथ साथ air pollution भी cause करते हैं. Machine should be well maintained so as to produce maximum noise. So machines को जो है well maintain करना चाहिए ताकि ये maximum noise जो है produce ना करें. And people working in noisy conditions should wear earplugs. और वो लोग जो इन noisy conditions में work करते हैं उन्हें earplugs पहनने चाहिए. Airports, factories and railway stations should be away from the residential areas. So ये जो सारी चीज़ें हैं, airports हो गए, factories हो गए, इन्हें residential areas से दूर होना चाहिए. Now let's recall what we have learned in this chapter. Sound is produced due to the vibration. Vibration have three important features. They are frequency, amplitude, and time period. A human ear can hear sound with frequency between 20 Hz to 20,000 Hz. Sound needs a medium such as solid, liquid, or gas to travel. It cannot travel through a vacuum. Sound waves travel the fastest in solid, comparatively slow in liquid and slowest in gases. Sudden and irregular vibrations produce noise, whereas regular sounds produce music. Stringed, winged, percussion and reed are the four kinds of musical instruments. Sudden unwanted noise in the environment that causes discomfort is called noise pollution, and it has various ill effects and hence it must be controlled. Now let's do the question answer, children. In which form does the sound travel? So sound travels in solids, liquids and gas. It needs a medium and it travels in these. It cannot travel in vacuum. Can we always see the vibrations? No, we cannot see the vibrations always, but sometimes we can see it. How can the low vibration be produced? Which of these will produce a louder sound? Big drum or small drum? So the answer is big drum. Who has a longer vocal cord? Longer vocal cord किसका होता है? Men or women? So answer is men. How is noise produced? And give some examples of Gan Vadya. What is the role of pinna? Why do children have the voice of high frequency? And classify the string instrument into different types with examples. So children, you have to do these questions on your own. I hope that you have understood the chapter very well. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lated.